बासिफ जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आशा जी, नमस्कार। How are you? Fine, sir. All well, all well. Yeah, excellent. It's a wonderful evening today. Yeah, somehow Yes, sir. आज Yes, हमने जो तैयार कर लिया, this is an historic event for all of us. yes, sir. I think Shitangshu has already joined. Yes. Yes, sir. Yes. I'm just opening my desktop also. It will take a bit time. But, Yes, sir. okay. Right. चित्रमन जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम चल रहा है तो अच्छा। शायद बीच में चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम करना पड़ेगा। होगा नहीं। ठीक। हाँ सर, स्टार्ट करें क्या? Okay, sir. So let me start. Let me have the honor of starting the program. यस सर। Thank you so much. A very warm, hearty welcome to our chief guest today, the main speaker today, Mr. S. Raman sir, and Mr. H.L. Asher, who is also present today. And we are lucky to have two big stalwarts amongst us. যখন তোমার স্যার আসবে তখন একটু বলবে যে মানে যে হোস্ট তোমার স্যার তাকে বলবে যে Rupa তোমার Bag, mute karo. Rupa Bag, mute karo, please. So before I start the class, let me tell you something, sir, to the two respected guests today evening, that we are, sir, actually 9 SBI and Likas who are on a mission to create a few Galaxy Club members amongst our agents. The name of the institute is Institute of Life Insurance Fundamental Education, Kolkata. So this is our first online session, and we are really honored and privileged to have both of you amongst us. But today's speaker is mainly Raman sir, and I have requested Mr. Asher sir also to conclude the class of today, and I will expect him somewhere in May or June to address the full session of ours, and we'll be honored on that day also. Thank you, sir, for your consent. Now something about Mr. Raman sir. He is 74 years old. He served the Indian Army from the age of 18 and continued his service in the army up to age 50. Just after retirement, he joined LIC, and after joining LIC in the very first year, he completed his first MDRT. So, starting of his career in LIC, started with MDRT. Till date, he hasn't missed any MDRTs. That is 24 MDRTs in 24 years, out of which twice he has completed his COT, and many times he has done his double MDRT. Even last year also he completed his double MDRT. He has started a new mission, that is Mission MDRT 508. His vision and mission is to create 500 MDRTs in every division with 50 MDRTs in each branch, so that all over India, his dream is to create a total of 50,000 MDRTs, which will help LIC regain its market share to over 92%. He has trained and addressed more than 500 meetings of both advisors and development officer or SBAs, but he hasn't charged a single fee money, nothing of a fees. Even today, only on a personal request, he immediately accepted the invitation that was forwarded from iLife. And I would
also tell you something, friends, that our class will be ending at around 9 o'clock. And he will leave home at 11 o'clock because 1 o'clock is his flight for Chennai. In the night, 1 o'clock, he will start traveling to Chennai, supposedly reaching around 2:30 midnight. And tomorrow he is addressing a big session, full day session at Chennai. He's such a sought after trainer. And he's a very young man of 74 years. He has his own YouTube channel also by the name of Financial Futures. And I think there are many more stories and many more things to say, but I would not like to miss an opportunity to say a particular episode of his life, which will definitely, goosebumps will be created in everybody's body. That is, during the second year of COVID, that is 2021, Mr. Raman sir was very much affected and was in a serious condition. He was admitted to a hospital. So when he was in the hospital, and we know that we cannot meet our near ones during those period, he felt that year he hadn't completed his MDRT. So he thought, shall I leave this world without completing my MDRT? But he is not a person to easily give up. So he started calling up his clients. Around 60 clients he called up in the next 5 hours or so, telling them that he needs some policies for MDRT. So send the money by GPay to my number and the documents by WhatsApp. From the following day onwards, he used to fill up 5 proposals of his policyholders, of his prospects, and he used to drop out of the window from the 5th floor window, and his development officer used to wait downstairs for the proposals. The proposals were taken to the office, completed by the development officer, and the receipts were sent by WhatsApp. And on the 27th of the month, that started on 22nd, and the 27th of the month, his MDRT was declared. All the policies were done from the hospital bed itself. That speaks volumes about his capability and his perseverance, discipline, thought process, focus, and everything. So without much time taking, I would straight away ask Kanchan sir, our CEO, to say a few words so that the class can start immediately. Kanchan sir, are you there? Namaste, Ramanji. Namaste. A very good evening. Kanchan sir, are you there? कंचन सर को कोर्स किया हुआ है. He's very much there, sir. Yes, thank you. नमस्ते सर, प्रणाम सर. Namaste. We are honored today. It's a great day for us, sir. Stalwarts like you, who are known all over the country in the insurance industry as a great men, some contributors, real givers. So we in Calcutta are very much honored to have you with us. And our is an organization where we are trying to create, the vision is the same. We are trying to create 40 Galaxy Club members this year. So we are in a process, and this is the part of the process. So I think we should not take any more much of the time. You know, you're all busy. I hand it over to Shitangshu to carry on. Thank you very much, sir. Thank you, Kanchan sir. Thank you so much. So I would request Sir Raman to join in so that the classes can start straight away. Thank you, sir. सबसे पहले सबको जो है, मेरा जितने भी गुरुवर हैं उनको मैं प्रणाम करते हुए ये सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ. साथ में जो है मेरा सहयोगी सपोर्टर, मेरा बीम पिलर जो है मिस्टर हेमंत सर, जो कि पूरा भारतवर्ष में आपका अपना आरसर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन हमने उनको दिया हुआ है.
क्योंकि मेरा जो है सिर्फ क्रिएशन करना, लोगों को पुल एंड पुश करना। बाकी जो है इतना बढ़िया सपोर्ट के वजह से ये सब हो पा रहा है। एक जो मिशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा है, कम से कम गैलेक्सी, क्योंकि कम से कम गैलेक्सी क्लब मेंबर को पाना है आपको प्योर कमीशन से ही होगा। एमडीआरटी बेशक जो है आपका बोनस कमीशन के साथ हो जाएगा, लेकिन गैलेक्सी पाना है तो आपको पूरा प्योर कमीशन 10 लाख लाना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 एमडीआरटी करेंगे तो आपको कम से कम गैलेक्सी का क्वालिफाई करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। इट्स ए टफ टास्क, लेकिन करने वालों के लिए एक आदत में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। लेकिन करना जरूरी है। करना इसलिए जरूरी है तो अपना जो है ऐसे एलआईसी एजेंट अपना लाइफस्टाइल को हम बना के रखेंगे, तब जाके हम मार्केट में जाके विदाउट फियर, सेल्फ बिलीफ के साथ हम काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ही खुद को इनकम नहीं है, अगर आपका परिवार संकट में है तो आप क्या बिजनेस करेंगे। तो गैलेक्सी मिनिमम गैलेक्सी क्लब मेंबर का जो मिशन है मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं रेकमेंड करूंगा, जो भी अभी चेन्नई जा रहा हूँ कल, वहां भी मतलब जो भी मिलेंगे मुझे एसबीए डीओस ली का, उनको भी मैं कहूँगा कोलकाता में जो है ऐसा ही एक मिशन के साथ जो हमारा गुरुवर लोग जो है कम से कम 40 गैलेक्सी का जो है मिशन लेके चल रहे हैं। तो 40 जो है 70 होगा, 70 100 होगा, 100 जो है लाखों में बदलना चाहिए। ये आशाओं के साथ आज का सेशन जो है हम शुरुआत करते हैं। चेंज आओ मत। तो मैं सेल्फ एस रामन सर ने मेरे बारे में जो है बहुत कुछ कह दिया है, मैं अपने आप को कहना कोई जरूरी नहीं समझता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है 360 डिग्री, 360 डिग्री विथ 36 सेल्स टिप्स, समय के मुताबिक मैं मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। ये 360 डिग्री क्यों दिया मैंने, ये जो है पूरा पृथ्वी जो है 360 डिग्री से जो है समा हुआ है, लेकिन आज से प्रोफेशनल जो है हम 360 डिग्री में बिजनेस कर पाएंगे क्या। अगर किसी से हम पूछते हैं दिशा कितना है तो बोलते हैं 4 दिशा है, लेकिन मेरा मानना है जितना डिग्रियां हैं उतना दिशा है। ईच एंड एवरी डिग्री हैविंग इट्स ओन डायरेक्शंस एंड दिशा। तो सेल्स टिप्स जो है मैं 36 इसलिए दिया है उसके साथ थोड़ा काम काम्बो हो जाए, लेकिन सेल्स टिप्स ऐसा है पूरा पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर डिपेंड है। और वो सेंस ऑफ ह्यूमर आप कहाँ से गेन कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम कस्टमर। जितने कस्टमर्स के साथ आप बैठेंगे उतना जो है आपको हर चीज मिलेगा। सेल्स का एक ही मंत्र है, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं के आगे जाने का आदत नहीं डालते हैं। सबसे पहला सीमा है आपका घर। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आपका विंडो आउट, डोर आउट नहीं मिलेगा। इसलिए जो है सीमाओं को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, सीमाओं को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए सेल्स का ये पहला मंत्र है। ये एक स्लाइड है, ये अप्लीकेबिलिटी है इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी एज वेल एज ग्राहक के लिए भी, मतलब कस्टमर प्रोस्पेक्टिव के लिए। ये एक को आप बढ़िया जो है प्रिंट करके लैमिनेट करके आप सामने रख के बात करेंगे ना,
इंश्योरेंस का महत्व पता चल जाएगा। ये 4 ही अल्फाबेट है। जो हम सांस लेते हैं हमें मालूम नहीं है हमारा जो है सांस कहाँ से, उसका ना रूप ना रंग। हमारा जो है हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसका कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अपना जिंदगी चल रहा है। जिंदगी किस चीज के लिए चल रहा है? पहला अल्फाबेट जो है आपका एल, लिव, जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अपना परिवार के लिए, खुद को जीने के लिए और अपना परिवार को जीने का जो है सब कुछ जो है प्रोविजन करने के लिए हमें चाहिए आखिरी अल्फाबेट ई, यानी मैं जीऊंगा और कमाऊंगा। मैं जीऊंगा, कमाऊंगा और अपने परिवार को मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा। और उनका जो फ्यूचर नीड्स है, एजुकेशन हुआ, मैरिज हुआ और खुद का जो है रिटायरमेंट कार्पस को क्रिएट करके मैं अपना बाकी जिंदगी भी सफल पूर्वक जीऊंगा। ये एल और ई के बीच में ही जो है एक जो डेंजरस अल्फाबेट है बीच में, इफ। ये इफ आई सर्वाइव, इफ आई सर्वाइव, इफ आई विल नॉट मेट एनी एक्सीडेंट। मैं जीऊंगा अगर बीच में कोई खिलवाड़ नहीं हुआ मेरे जिंदगी के साथ, मैं कमाऊंगा भी और मेरा परिवार को भी जीने का रास्ता दिखाऊंगा। ये जो इफ है इतना जो डेंजरस जो है दो अल्फाबेट है, एल और ई को ब्रिजिंग करने के लिए है लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए जो है लाइफ में इंश्योरेंस हमेशा जरूरी है। द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिजिंग एल एंड ई। एल एंड ई को ब्रिजिंग करने के लिए जो है ये इफ को हटा के हमेशा जो है पकड़ के रखने के लिए खुद को और परिवार को, ये है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम दे नहीं सकता है। ये आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ब्रेडविनर। अभी आते हैं, ये सब कुछ हम समझने के बावजूद भी LIC एजेंट, मैं खाली LIC एजेंट ही बोलूंगा, LIC एजेंट क्यों कामयाब नहीं होते? जो अभी जैसे आप जो है जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर, SBA, डी का इतना मेहनत करके आप कलकत्ता में आप बैठे हैं और हम पुणे में बैठे हैं, हमें संपर्क करके हमारा आपका समय को ये करके आप ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं एजेंट के लिए, एजेंट का वेलफेयर के लिए, एजेंट का इनकम बढ़ाने के लिए, जैसा आप शायद अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया होगा, फॉर योर ओन सन एंड डॉटर्स। हमको ऐसा लगा है ये क्या कर रहे हैं अपना एजेंट के लिए, इन लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सल्यूट टू ऑल सर, गुरुवरों को। ये क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। जो आपका गुरुवर, आपका SBA एक एक कदम में आपको जो सिखाते हैं, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके ऊपर कितना काम करते हैं। और काम में कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार काम करने का क्षमता नहीं है। क्यों क्षमता नहीं है? यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस मोर देन योर बिजनेस। आपका बच्चों को स्कूल में छोड़ना, शायद कई अभी करता है जो है खाना भी पकाते होंगे घर पे, हफ्ते में एक ही दिन काम करूंगा, कैसा होगा? और दूसरी चीज, आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपका ग्राहक, आपका जो है क्या बोलते हैं प्रास्पेक्टिव, नो बोलता है, कभी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कभी उसके बाद 3 बार 4 बार आप सुनेंगे ना, 5वां बार उससे मिलना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं ये कोई काम का आदमी नहीं है, इससे मिलना बंद कर दो। पैशंस नहीं है। विदाउट पैशंस आपको जो है
आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगा। और खुद को जो है ना, कोई सपना नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, आपको इतना भी हिम्मत नहीं है आप अपना पाँव को जो है झुक के देखने का। अपना फुट को ना आप देखेंगे, तुम्हारा फुट अगर गंदा नहीं हुआ तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा। चल 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 के तुम्हारा जो है शू चप्पल घिस जाना चाहिए, और जो है आपका फुट में जो है नीचे छाला पड़ जाना चाहिए। इतना पागलपन रहेगा तब जाके यू कैन गेटिंग द ड्रीम्स ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे जो है दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, और रात दिन पागल बनना पड़ता है। जिस दिन जो है तुम अपना प्रोफेशनल में पागल बनोगे, समझ लीजिए उस दिन से तुम्हारा सक्सेस जो है नजदीक आते रहेगा। और ये एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और ये गैलेक्सी जो बनने के पीछे 5 मंत्र है। बर्निंग डिजायर होना चाहिए, पूरा खून में जो है आपको उबलना चाहिए, मैं गैलेक्सी बनकर ही छोड़ूंगा, मेरे को और कोई रास्ता नहीं है। और समय उसके मुताबिक आप अलर्ट करके काम करना चाहिए, और बिल्कुल उसमें निर्धान मतलब डेडिकेटेड काम शुरू कर देना चाहिए। और उस काम को रोज डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, अगला दिन मेरा जो है 5 जिससे मिलना है वो आपका डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। और सुबह उठ के जो है वो 5 से मैं कब मिलूंगा, किस वक्त में मिलूंगा, क्या प्रेजेंटेशन दूंगा, बिफोर प्रेजेंटेशन कैसा प्रिपेयर करूंगा, ये सब कुछ मतलब रोज होना चाहिए। और आपका स्किल जो है ना अपने आप जो है बढ़ते जाएगा। और प्रॉस्पेक्टिंग, क्योंकि अगले दिन आपको 5 प्रॉस्पेक्ट से मिलना है, आपके पास 4 है तो 5 आप अपने आप ढूंढना शुरू करोगे। और आपका जो है फास्ट ट्रैक गैलेक्सी बनना है, आपका सांसों में, आपका खाने में, आपका पीने में, आपका सोने में, और आपका सोचने में, हर चीज ये होना चाहिए मेरा जो है एमडीआरटी एंड गैलेक्सी, एमडीआरटी एंड गैलेक्सी, सीओटी एंड गैलेक्सी, सीओटी एंड गैलेक्सी, यही होना चाहिए। और डिक्लेयर करो। और जिस कोई भी मिलता है ना, मैं जो है इस साल जो है बिफोर अक्टूबर, बिफोर नवंबर 15 आई एम गोइंग टू डिक्लेयरिंग माई गैलेक्सी क्लब मेंबर बिफोर एमडीआरटी। मतलब है ना, जितना मतलब पागलपन होना चाहिए। और जो बढ़िया जो है टीओटी वगैरह करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, जो है रोज 9-10 कॉल करते हैं, 3-4 लोगों से मीटिंग करते हैं, कम से कम 2-3 को प्रेजेंटेशन देते हैं, और वो सब कुछ करने के लिए एडवांस में प्रिपेयर करते हैं। और उनको अपना जो है रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, तब जाके वो टीओटी बनता है। अगर आपको एमडीआरटी, टीओटी, सीओ, एमडीआरटी और गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना है, कम से कम, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 10 कॉल करो, 10 लोगों से मीट करो, कम से कम 5 लोग। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। विंस्टन चर्चिल साहब ने बताया है, विंस्टन चर्चिल साहब ने ये बताया है, आपका अपना कामयाबी का रास्ते में कितने भी कठिनाइयां आते हैं, उसको परवाह मत करिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपका आगे का रास्ता साफ सुथरा और सफलता का रास्ता मिलेगा, और आप जो है अपना जंग में जीतोगे। ये विंस्टन चर्चिल का और कोई कहानी है, वो कहानी बताने से टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर आप गैलेक्सी का पागलपन लिया है, वो पागलपन के पीछे चलते रहना है। कोई कितना भी आपत्ति आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, परवाह नहीं करना है। आपका कामयाबी से ज्यादा कीमत आपका जान नहीं है। अगर कामयाबी पाओगे, अपने आप जान उभर के आएगा,
आपका लाइफ बढ़ेगा और उम्र बढ़ेगा जैसा मेरा बढ़ा है। कीप गोइंग, काम पे, रोज काम पे जाओ, रोज, हर हफ्ता, हर महीना, कोई एक दिन भी जो है आपको छूटना नहीं चाहिए। ऐसा आप हर घड़ी, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना आप काम करते हैं तो एक दिन आपको ऐसा होगा, आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाओगे। आपको लगेगा अरे मैंने कैसा कर दिया। जब रिजल्ट जो है सक्सेस में कन्वर्ट होके जब लोगों को पता चलता है, उस दिन आपको रियलाइज होगा व्हाट आई एम, मैं क्या कर सकता हूँ। तब एक इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी सामने उभर के आता है। जो है ये प्रीमियम वगैरह भी मतलब टैक्सेबिलिटी होने के बाद भी लोग कैसा टीओटी सीओटी टीओटी बन रहे हैं, ये मतलब बात की बात है। अभी हम लोग क्या काम करना चाहिए मैं बताता हूँ। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो, एक ही जैसे काम मत करो। आपका जो है पोर्टफोलियो में, आपका प्रॉस्पेक्ट्स में हर किस्म का मतलब सब्जी वाला भी होना चाहिए, दूध वाला भी होना चाहिए, प्रोविजन स्टोर वाला भी होना चाहिए, मेडिकल स्टोर वाला भी होना चाहिए, एम्प्लॉय भी होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाला भी होना चाहिए, घर में काम करते हैं वो मेल या सर्वेंट भी होना चाहिए, मतलब डॉक्टर्स भी होना चाहिए, एक दो जो है एनआरआई भी होना चाहिए, एक दो एचएनआई भी होना चाहिए। मतलब डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई करेगा तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा ही। और सक्सेस का ये है 3 मंत्र है। सर्च, जो खोजता है, जो खोजता है अपना दिल और दिमाग से, उसको खजान मिलता है। खजान का मतलब गोल्ड का सुरंग मिलता है। हमको खोजना ऐसे एडवाइसर, हमको प्रॉस्पेक्ट को ढूंढना है, सस्पेक्टिंग करना है, प्रॉस्पेक्टिंग करना है, उनसे अप्रोच करना है, नेगोशिएशन करना है, क्लोजिंग करना है और ऑर्डर देके अच्छा किया उसका एनोन दिखा। हाँ, तो उसका वो उसका तो सर्च पहले करना जनरल है, मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, ठीक है सस्पेक्टिंग। कि हाँ, तो है कि नहीं है। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ये खोजने का जो है मैंने पहले बताया, ये मीटिंग का हेडिंग है, हेडलाइन से 360 डिग्री। मैं बोलता हूँ ये 360 डिग्री आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 5 KMD, 5 KMD का फॉर्मूला में काम करो। 5 KMD का मतलब 5 किलोमीटर डायमेंशन। आपका घर जहां है या आपका ऑफिस कहाँ है, वहां से 5 किलोमीटर का डायमेंशन में आप सर्वे करो। कंटिन्यू जो है 221 डेज जो है सर्वे करो। कितना दुकानें हैं, कितना मकाने हैं, कितना सोसाइटी है, कितना, सब कुछ सर्वे करके लिस्ट बनाते जाइए। वो है सस्पेक्टिंग। लिस्ट बनाने के बाद उसमें कैटेगराइज करिए। प्रोविजन स्टोर्स कितना है, मेडिकल स्टोर्स कितना है, हार्डवेयर शॉप कितना है, और डॉक्टर्स कितना है, और सोसाइटीज कितना है, हाउसिंग सोसाइटीज कितना है, सब कुछ लिख दो। अगर आप जो है 5,000 ऐसा जो है 5 किलोमीटर का डायमेंशन में लिख दिया, एलआईसी में तुम राजा बन के जियोगे। सिर्फ 5 किलोमीटर डायमेंशन। इसी 5 किलोमीटर डायमेंशन में आपको 6 किस्म का प्रॉस्पेक्ट मिलेगा। वो 6 किस्म का प्रॉस्पेक्ट कौन है? लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई, इवन एनआरआई। इसी 5 किलोमीटर डायमेंशन में किसी न किसी का घर पे फॉरिन में भी नौकरी करने वाला होगा। इसी में कोई बड़ा पैसा वाला एचएनआई होगा। इसी में कोई जो है उद्योगपति होगा, ऐसा जो है उसका 2-3 फैक्ट्री चल रहा होगा। आपका 5 किलोमीटर डायमेंशन में पूरा मिलेगा आपको। आपको दूर जो है भागने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका घर से 10वां दुकान का नाम और उसका मोबाइल नंबर आपके पास है क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने सस्पेक्टिंग नहीं किया।
सस्पेक्टिंग से नेक्स्ट स्टेप, जब तक सस्पेक्ट नहीं करोगे प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ये हो गया सर्च। नाक, आपने प्रॉस्पेक्ट कर दिया, जाके दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खुलता तो लोग मिलता है, मिलता तो वो पूछता है आपको क्या चाहिए भाई साहब, फिर अपना डायलॉग शुरू होता है। तीसरा जो है, जो मांगता है, मुंह खोल के जो है डिमांड करता है, उसको मिलता है। जो मांगता है उसको मिलता है, जो कोसता है उसको सस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग होता है, और जो खटखटाता है उसको लोग मिलते हैं, और वो खटखटाने के बाद जो जो लोग मिला है उससे मांगता है उसको मिलता है। वही आदमी MDRT COT TOT गैलेक्सी क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। आप अपना अपडेशन करते हैं क्या? आप अपडेशन करते हैं क्या? जो भी जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो अपने आप अपडेट करता है। व्हाट्सएप अपना अपडेशन करता है, फेसबुक अपना अपडेशन करता है, यूट्यूब अपना अपडेशन करता है। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर आपको प्रयत्न करके यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन जूम लाया है और प्रैक्टिकल ऑफलाइन सेशन करने वाले हैं। ये सब कुछ जो है आपको नॉलेज मिला, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया क्या, वही अपडेशन है। डू दे नीड टू एडवर्टाइज? जो आपने अपने आप को ब्रांड में कन्वर्ट किया क्या? नहीं किया तो रास्ता बनाइए। अपने आप आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। LIC एक ब्रांड है, वो सपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल LIC एजेंट आपका अपना एक ब्रांड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? कोई भी इंश्योरेंस आपसे लिया है तभी उसका म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए मेरा एडवाइजर कहाँ में फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दोनों को 4 व्हील व्हील है, उसमें जितना आदमी बैठ सकता है इसमें भी उतना ही आदमी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? ये नानो है, इसका भी फैक्ट्री बना, सिस्टम बना, लेबर हुए, शोरूम बना, लोगों को बोला सस्ता गाड़ी है। जब सस्ती बोला तो लोगों को हो गया मस्ती, इसको इग्नोर किया। पूरा वर्ल्ड में यही एक गाड़ी है, पूरा 360 डिग्री में अबाउट टर्न होता है, कड़े कड़े। कोई भी बाकी गाड़ियों को जो है उल्टा होना है तो मतलब पूरा घूमना है तो 3-4 बार रिवर्स करके मतलब घुमा के खड़ा करना पड़ता है। यही ऐसा गाड़ी है, 360 डिग्री जो है अबाउट टर्न हो जाता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि सस्ती है। अभी उसी जो है टाटा का गाड़ी है दूसरा, उसके लिए जो है 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख मॉडल के मुताबिक लोग ले रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि जो महंगा है उसका जो है लोग रेस्पेक्ट करते हैं। आपका भी रेस्पेक्ट तब मिलेगा आप कम से कम MDRT WMDRT गैलेक्सी क्लब मेंबर बनोगे, नहीं तो आपको सब जो है सस्ती गाड़ी को जैसा इग्नोर किया फेंक देगा। एक हार्ड वर्ड बोल रहा हूं मैं। ओनली यू कैन क्रिएट योर ओन वैल्यू। ओन वैल्यू कैसा मिलेगा? सबसे पहले अपन को कैसा कैसा पॉलिसियां बेचना ये आना चाहिए। HNI पॉलिसी कैसा बेचना है, बिजनेसमैन का पॉलिसी कैसा बेचना है, MW मैरिड वुमन एक्ट में कैसा पॉलिसी बेचना है, कीमैन पॉलिसी कैसा बेचना है, NRI पॉलिसी कैसा बेचना है, ह्यूमन ये क्या बोलते हैं HUF कैसा HUF पॉलिसी कैसा बेचना है, और
जीवन लाभ को ये किस किस्म से बेचने का सेल्स टेक्निक क्या है, उमंग को कितने किस्म से हम बेच सकते हैं, उत्सव को कितना किस्म से बेच सकते हैं, ये सब जो है सुबह उठ के आपको रोज जो है कम से कम हर दिन एक प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ाई करेंगे, आपको नॉलेज बढ़ेगा, उसी को जाके बीच में आपको बताना पड़ेगा। अगर 4 डायमेंशन इनकम ग्रोथ चाहिए, आपका पहला 5 साल दिन रात काम करना पड़ेगा, डे एंड नाइट। आपको तब तक अधिकार नहीं है छुट्टी लेने का, नो संडे, नो मंडे, नो त्योहार। 5 साल अपने आप को आप दे दो अपना इंश्योरेंस का बिजनेस में, अगले 50 साल तुम राज करोगे, राज। आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, जब रास्ता बनाओगे तब तुम्हारा गाड़ी का पहिया घूमेगा लगातार। और रिच कैन मेक यू रिच, पैसे वाला ही तुमको पैसा वाला बनाएगा, लेकिन नीचे वर्ग का लोगों को भी छोड़ने का नहीं, उनके भी संपर्क रखना। क्यों संपर्क रखना? जितने भी बड़े वाले हैं उनका काम ऐसे नहीं चलता है, उनके पास जो है सब नीचे वाला काम पे रहते हैं, तो अपने को नीचे वालों को भी ग्रिप करके रखना है, पैसे वालों को भी ग्रिप करके रखना है। जो अल्ट्रा एचएनआई बिजनेसमैन है, हाई पेड प्रोफेशनल, एनआरआई, और जो है मैंने जैसा ही बताया लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, एचएनए, अल्ट्रा एचएनए, सबके पास पहुंचना है विदाउट फियर। ये देखिए हमारा जो एजेंटों का हालत कैसा है। 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ ए प्रोस्पेक्ट। एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, बस खत्म। 25% तो 2 बार मिलता है, उसके बाद छोड़ देता है, और 12% जो है 3 या 4 बार मिलता है, और 10% जो है मोर देन 4 टाइम्स। 2 to 5% सेल्स जो है पीपल है वो कम से कम 5 से 10 बार मिलता है, और 1% जो है 1% जो है सेल पीपल, जब तक वो पॉलिसी नहीं लेता है तब तक छोड़ता नहीं। 15 साल 20 साल आप लोग ने सुना होगा, अरे मिस्टर दास है ना, वो एक ही पॉलिसी में टीओटी हो गया। अरे मिस्टर जो है हिमांशु भौमिक साहब, वो 5 पॉलिसी में टीओटी हो गया। क्या उसको घर से बुला के वो 5 आदमी ने पॉलिसी दिया क्या? उसने जो है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल उसके साथ घिसा है, उसके साथ मिलते रहा है, उसके साथ बेइज्जती है ना, बेइज्जती, नो 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 सुनते रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं। नो को रिवर्स करोगे तो आन होता है, ओएन। वो जब तक हाँ भर के उससे पॉलिसी नहीं लिया, उसने रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। हर बार मिलते रहा, मिलते रहा, मिलते रहा, और पेशेंस के साथ इंतजार किया, उसने पेशेंस के साथ इंतजार किया है, इसलिए उसको फ्रूटफुल बिजनेस मिला है, फ्रूटफुल बिजनेस मिला है। इसलिए जो है आप देखेंगे पूरा भारतवर्ष में एलआईसी का जो एमडीआरटी का जो है आउट ऑफ 12 लाख एजेंट में सिर्फ 17,440, क्योंकि इन लोग लगातार काम करते हैं, लगातार नो को सुनते हैं। आपका जब तक कमाई नहीं होगा, जब तक आपका सेल्स नहीं होगा, जब तक आपका सेल्स कंप्लीट नहीं होगा, जब तक जो है ग्राहक से आप सिग्नेचर किया हुआ चेक या तो कैश नहीं लेते हैं, जब तक आपका सिग्नेचर किया हुआ सेल्स और चेक तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मिलेंगे नहीं, उनसे मिलके प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। जब तक आपका प्रेजेंटेशन और जो है इंटरव्यू नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, तब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगा आप कॉल नहीं करेंगे या जाके प्रॉस्पेक्ट को क्रिएट करके नहीं मिलेंगे।
इनकम पूरा अपॉइंटमेंट के ऊपर निर्भर है। प्रोपोर्शनेटली कोइंसाइड होता है आपका इनकम। जितना ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट होगा, 4 अपॉइंटमेंट होगा तो एक सक्सेस होता है। तो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट मैक्सिमम इनकम, मिनिमम अपॉइंटमेंट मिनिमम इनकम, नो अपॉइंटमेंट नो इनकम। ठीक है। आपका इस साल का जो है गोल और टारगेट, राउंड फिगर में बोलता हूँ, एमडीआरटी का 10 लाख रुपया, सीओटी का 30 लाख रुपया और टीओटी का 6 लाख रुपया, ये कैलेंडर ईयर का है। और गैलेक्सी का जो है डायरेक्ट जो है आपको फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया प्योर कमीशन, प्योर कमीशन, प्योर कमीशन पाओगे तब आप गैलेक्सी करोगे। और फर्स्ट ईयर में 8 लाख बोलता है, मैं बोलता हूँ दिमाग में हटा दो वो 8 लाख रुपया, सीधा 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया, 12 लाख करो, गैलेक्सी डिक्लेयर करो, तुम्हारा आदत में आ जाएगा 10-12 लाख रुपया कैलेंडर ईयर में कमीशन कमाने का। और रास्ते में एमडीआरटी डब्ल्यूएमडीआरटी हो जाएगा। आपका काम में ना, जैसा ब्रांच में कुछ जो है कंपटीशन रहता है, डिवीजन में रहता है, जोनल में रहता है, सेंट्रल ऑफिस का रहता है, आप डब्ल्यूएमडीआरटी करोगे ना, ये पूरा कंपटीशन आपका रास्ते में आएगा। आप कंपटीशन के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं, कंपटीशन तुम्हारा पीछे भागेगा। भाई साहब, आपने गैलेक्सी किया ना, पूरा साल में आपका ये कंपटीशन में ये ट्रॉफी है, ये बख्शिश है, ये चीजें करके आपको घर पे पहुंचेगा। अभी मैं एक छोटा सा जो है टिप्स दे रहा हूँ, ये सेल्स का पहला टिप्स है। अगर कोई व्यक्ति 100 डेज में एमडीआरटी करना चाहता है, आपका स्टेशनरी दुकान में ये मिलेगा ऐसा 1 to 100 का, उसको ऊपर लिखिए टारगेट एमडीआरटी, टोटल प्रीमियम 30 lakhs। आप 100 डेज में 30,000 पर डे रोज लाओ या 3 दिन में एक बार भी लाया, आपका 300 डेज में एमडीआरटी हो जाता है। और इसका राउंडिंग करना शुरू करना है रिवर्स ऑर्डर में। पहला एक 30,000 प्रीमियम लाया, आप 100 को राउंड करो, उसके बाद सेकंड लाया 99 का करो, थर्ड में आपको 20,000 प्रीमियम आया, उधर जो है 2/3 कट के 20,000 रखो, जब 10,000 मिल गया उसको पूरा करो। अगर कभी 60,000 मिलता है 2 ब्लॉक को राउंड करो। अगर रिवर्स से आप 100 से शुरू करेंगे, आपको बहुत जल्दी जो है 1 तक पहुंचोगे। 1 से शुरू करोगे, 100 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ा हिमालय दिखेगा। तो आपको ये एक ट्रिक्स है, ये इसको मैं अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर तक 25,000 का रखा था, अभी इस साल जो है प्रीमियम और कमीशन का रेंज बढ़ा है तो ये 30,000 का आ गया। ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है जो नहीं है। विजन है, मिशन है, ड्रीम है, मनी है, कैश है, रिच है, गेटवे है, अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, प्रॉफिट है, कैरियर है, ड्राइव है, वर्क है, इंटरेस्ट है, इंटरनेट है, क्या नहीं है, सब कुछ है, डायरेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डेफिनेशन है बहुत मजबूत डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है, आप ग्राहक को बताओ, प्रॉस्पेक्टिव को बताओ, सर जिस दिन जो व्यक्ति अपने आप को सैलरी देने का लायक नहीं बनता है, तब तक उसका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। जिस दिन जो व्यक्ति अपने आप को तनख्वाह देने का लायक नहीं बनता, तब तक उसका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 एज में रिटायर्ड हो रहा है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है,
उसको 100 रुपया सैलरी है तो 100 रुपया नहीं मिलने वाला है, उसको 45 या 50 रुपीज ही मिलने वाला है। इसका मतलब उसको लाइफ स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? नहीं। अगर वो प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग बनाएगा तो उससे जो है उसको जितना चाहिए वो जो है पूरा 100 रुपया मतलब उसका इंटरेस्ट से या एन्युटी से या पेंशन से आना शुरू होना चाहिए, तब वो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। ये सबके लिए लागू है। अभी एलआईसी एजेंट कहीं भी जाते हैं, वो पूरा अपना मतलब एक तो वो बिल्ला जैसा जो है डांग के घूमता है, और दूसरा जो है एक ब्रीफ केस होता है, नहीं तो एक बैग होता है। दूर से दिखता है ये एलआईसी एजेंट आ रहा है करके, और सब कुछ है, ब्रीफ केस है, बैग है बढ़िया, और एलआईसी का बढ़िया ब्रांडेड जो है ये है, आई कार्ड है। ये तीनों के साथ उसका ड्रेसिंग है क्या? प्रॉपर शू पॉलिश किया हुआ, प्रॉपर पैंट शर्ट जो है इंसर्ट किया हुआ, शेविंग किया हुआ कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। और वो बोलता है कोई भी मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ जो है रीजन बोल के मेरे को धक्का मार देता है। मारेगा ही। और सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ पर्सनैलिटी अच्छा है, वेल टू डू है, सब कुछ ड्रेस अच्छा है, उसके बाद भी वो भी नो सुनता है, लेकिन रेस्पेक्ट से सुनता है। तब वो जो है वो तो ग्राहक का मर्जी है आपको नो बोलने का। मेरा रिलेटिव एलआईसी एजेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है, एलआईसी का जो है प्रीमियम ज्यादा है, रिटर्न कम है, कुछ ना कुछ बोलेगा ही। लेकिन विदाउट टेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी या एलआईसी पॉलिसी, ना एलआईसी एडवाइजर बोल के आपको पॉलिसी बेचने का आदत में आना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको जो है कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। जैसा एक कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। ये इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन का मतलब घर का खर्चा बताओ, आज का आपका स्टेटस क्या है और कल का आपका स्टेटस क्या रहेगा। अगर एक व्यक्ति का जो है, आप घर का जो है खर्चा, आप उनके सामने जो है 2 ब्लैंक फॉर्म ले लो, आप भी अपने सामने रखो और उसको भी दो, भाई साहब मैं अपना घर का खर्चा लिखता हूँ, इनकम लिखता हूँ, आप अपना लिखो। क्योंकि जब आप खुद जो है लिखना शुरू करेगा तो वो भी लिखेगा, तब पता चलेगा वो कहाँ पर है, डेबिट में चल रहा है या क्रेडिट में चल रहा है, या वो जो पाता है वो पूरा होता है कि नहीं। और सपोज मैंने जैसा बोला, लाइफ में कमा रहा है और अर्निंग कर रहा है और जी रहा है और परिवार को भी जी रहा है, अगर बीच में कुछ हुआ तो परिवार को रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम देने वाला कौन है? वो है इंश्योरेंस। ये पूरा उसको समझाना पड़ेगा। वो लिख के दिया है ऐसा ऐसा खर्चा है, 30,000 रुपया, 30,000 मंथली, मतलब उसका खर्चा है, लाइफस्टाइल, उसका घर चलना ही है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये 30,000 कौन देगा? तो उससे हम पूछते हैं ठीक है 30,000 तो बहुत दूर रहा है, आपने 50% लिक्विडिटी, आपका घर का खर्चा का 50% आपने बंदोबस्त किया क्या? और यू मेड अरेंजमेंट ऑफ 50% इनकम? तब हम उसका जो है जन्म कुंडली निकाल के देखते हैं, तब उसका जो है गैप आता है। अगर वो गैप को पूरा करने के लिए ही इंश्योरेंस है। अगर वो बोलता है आप 50% इनकम का जरिए मेरे को क्यों समझा रहे हैं? भाई साहब मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम कोई ना कोई रीजन देके मेरे से बात ही नहीं करते हो इंश्योरेंस का, इसलिए मैं सोचा है चलो घर का खर्चा में तुम जो है रहे ना रहे, कम से कम 50% का तो बंदोबस्त किया है कि नहीं वो देखने के लिए हम हिसाब किताब कर रहे थे। इफ यू विश, अगर आप चाहते हैं हम 100% का पूरा करते हैं। तब उसका जो 100% का 48 लाख से 50 लाख का जो है लिक्विडिटी जो कॉर्पस चाहिए,
वो बंदोबस्त करने के लिए इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस मात्र ऐसा एक जो है टूल है, थोड़ा सा प्रीमियम देके आप बहुत बड़ा कार्पस को एस्टेट को क्रिएट कर सकता है। इफ यू आर सर्वे आप गेटिंग पूरा एंटायर कार्पस विथ बोनस इंटरेस्ट, अगर कुछ हुआ तो लमसम पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में। दूसरा कंसेप्ट है, हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा बात शुरू कर सकते हैं, सर मैंने कल ही थोड़ा सा मतलब पेपर में पढ़ाई किया, मैगजीन में पढ़ाई किया, हमारा जो है इंस्ट्रक्टर ने एक चीज सिखाया है, मैंने भी पहली बार सुना है। इनकम तो मैंने सुना, लेकिन उन्होंने बोल रहे थे इनकम में भी बहुत तरीका है, एक्टिव इनकम, पासिव इनकम। और वो बोल रहे थे सर एक्टिव इनकम का मतलब आपका बॉडी टाइम मनी मतलब सब कुछ होने के बाद आपका एक्टिव इनकम होता है, लेकिन उसका निरंतरता है ही नहीं है। और पासिव इनकम का वो इम्पोर्टेंट बोल रहे थे। आप बोल रहे मत बोलो, कुछ दूसरे ने मतलब एक एक्सपर्ट ने तुमको सिखाया करके बोलेगा तो सामने वाला बिलीव करता है। हम लोग कोई कोई कोट बोलते हैं ना, साक्रेटिस ने ये बोला, रविंद्र ठाकुर ने ये बताया, तो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि फेमिलियर पर्सनालिटी है। तो पासिव इनकम वो बोल रहे थे बॉडी टाइम मनी का बिना जो है, जो अपने आप इनकम आता है उसको पासिव इनकम करते हैं। और साथ में ये क्या बोल रहे थे, पासिव इनकम कहाँ कहाँ से आता है। वो बोल रहे थे चलो अपने पास पैसा है, मकान लिया, भाड़े पे दिया, उससे आता है बोलते हैं। बैंक में एफडी डाला तो इंटरेस्ट के जरिए पासिव इनकम आता है बोलते हैं। लेकिन क्या है, वो सब जो है कंटिन्यूसली गारंटीड लाइफ टाइम आएगा क्या? मैंने पूछा उनसे, बोला गारंटी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कभी भी कोलैप्स भी हो सकता है। तब मैंने उनसे पूछा है, वो एक्सपर्ट से, इसका आंसर क्या है, इसका खोज क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया है, पासिव इनकम हमेशा बेटर देन बेस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने 2-3 तरीका बताया है, उसमें से उन्होंने एक इंश्योरेंस का भी जरिया बताया है, जो कि वहां पर आपको जिए तो भी पैसा मिलेगा, अगर किसी वजह से ना जिए तो भी परिवार के लिए पैसा मिलता है। ये डायलॉग बोलते बोलते आप अपना जो है जीवन उमंग को पिच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सब, आपको जो है आज के हिसाब से 6% इंटरेस्ट चाहिए, तो आपके पास जो है इतना पैसा होना चाहिए, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उतना तो है ही नहीं। लेकिन उसको हम क्रिएट कर लें ईएमआई में विदाउट इंटरेस्ट, कैसा रहेगा? थोड़ा थोड़ा पैसा तो हम जोड़ सकते हैं। 25,000 के हिसाब से अगर हम 3 लाख रुपया 15 साल के लिए जोड़ते हैं तो 45 लाख बनता है। एक्चुअली आज के दिन हमारे पास 50 लाख रहेगा 6% से, जब तक के हमको 25,000 मिलेगा। यहाँ भी हमको जो है 60 लाख के जगह पर 45 लाख की सेविंग करना है, यहाँ पर सीधा 25% डिस्काउंट हो गया। एक्चुअली हमको चाहिए कार्पस चाहिए 60 लाख रुपया, तब जाके हमको ये पैसा मिलेगा। हमारा जो है मदर LIC ऐसा है, 45 लाख ही लेता है, 15 लाख का छूट दे रहा है, और आपको 16th ईयर से 3 लाख रुपीस परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या है आपका, उस पे 8% गारंटी है, 8% गारंटीड, 37,50,000 रुपीस आप जीवन उमंग एक पॉलिसी देगा। दैट इज नॉट सम अश्योर्ड, दैट इज नॉट सम अश्योर्ड, दैट इज परचेज प्राइस। आपने एक वर्चुअल एस्टेट 37,50,000 को आपने खरीदा, वो भी खरीदा कैसा है, वो परचेज प्राइस को खरीदा ईएमआई में विदाउट इंटरेस्ट। वो परचेज प्राइस के ऊपर 8% गारंटीड है। ये मैंने इन ब्रैकेट में ऐसे लिखा, उसको चेंज कर दीजिए PP, परचेज प्राइस।
and that 8% guaranteed tax-free lifetime increasing of principal amount. Increasing of principal amount. लोग क्या कहते हैं, डायलॉग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ हमको पैसे से बात करना है। आपका जो मूलधन में आपका 8% बढ़ रहा है और आपका मूलधन में 3% बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि वो किसके लिए है? 8% तुमको सर्वे करने के लिए, 3% तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये है जीवन उमंग। एक्टिव इनकम पासिव इनकम के साथ कंसेप्ट भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। उत्सव, अभी उत्सव जो है एक जबरदस्त पॉलिसी है, इसमें कई विवादें चल रहा है। टैक्स तो नहीं लगेगा, अगर 5 साल का टैक्स लगेगा। 5 इयर्स का आप टर्म दोगे, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, 10 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म तक आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेटली आपको 10% जो है प्रीमियम से कम होना चाहिए सम एश्योर्ड से। तो उसके लिए क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, हमारे पास जीवन उत्सव करके एक प्रोडक्ट है, इसमें टर्म जो है आपको 2 साल से लेके 16 साल तक, 2 साल से 16 साल तक। आपको कितने साल पेमेंट करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए हमने 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है। अगर कोई बोलता है मेरे को 3 साल ही पैसा भरना है, अगर वो बोलता है मेरे को ये 5 इयर्स मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है उत्सव का, वो ही ले लेते हैं हम। वो बोलता है मेरे को 5 साल पेमेंट करना है, बोला ठीक है साहब। अगर वो देना चाहता है 5 साल में और वो इतना ही पैसा देना चाहता है, 12.5 लाख का 5 साल का, तो उनको आप बताओ आपको 5 साल में जो भी पैसा देना है 2,67,259, मैं पॉलिसी का टर्म दूंगा 12 साल। मैं बड़ा टर्म देके कम प्रीमियम में आपको हाल्ट कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। छोटा टर्म देके मैं टर्म को एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ। और इसमें एक एडवांटेज क्या है, अगर 5 इयर्स आप पर्टिकुलरली नोट करके प्रपोजल फॉर्म में, सर आप मतलब 5 इयर्स का टर्म लेते हैं, आपका जो है आने वाला दिनों में जो है इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए मैं जो है आपको 30 लाख का पॉलिसी दे रहा हूँ। आपको 12.5 लाख के जगह पर 30 लाख का पॉलिसी दे रहा हूँ, लेकिन आप 5 साल में रोक दीजिए। और मैं 12 साल का टर्म दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये जो है प्रीमियम पेड का कंसेप्ट है, पेड अप वैल्यू का, सॉरी प्रीमियम पेड अप वैल्यू का कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा, आप 5 साल का जो है 30 लाख जो है 12 साल टर्म को मेंशन करके दोगे। सपोज अगर 5 साल के अंदर उस पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है, तो उसको 30 लाख के हिसाब से उसका परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। और वो सर्वे कर लिया तो उसको 14 साल से पैसा मिलेगा। आप 5 साल का भी टर्म दोगे, 8 ईयर से पैसा नहीं मिलने वाला है। हेलो, उसको 11 साल के बाद ही पैसा मिलने वाला है। जब 11 साल से जो व्यक्ति पैसा लेने के लिए तैयार है, वो 13-14 साल के बाद भी ले सकता है। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि इसको भी आपका नॉलेज रहेगा, तो बाकी जो अभी करता है, जो बाकी एजेंट है उससे ज्यादा ये वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है उत्सव बेचने का। ऐसा मैंने 36 कंसेप्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन ऑन इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड डिपॉजिट इन ऑन इंस्टॉलमेंट क्या है, हमने सितांशु सर, Yes, sir. गोइंग वेल? Yes, sir. I'm there. नहीं गोइंग वेल, आवाज वगैरह Yeah, everything is well, sir. Everything is going well. Okay. Fantastic. सर मुझे कोस्ट कर दीजिए। हाँ,
किया था पहले। मैं बाद में करता हूँ थोड़ा, मेरे को है ही नहीं। Okay. एक मिनट। बाद में करता हूँ। ये एफडीआर इंस्टॉलमेंट हमने कैसा कन्वर्सेशन शुरू करना है। आपका कन्वर्सेशन शुरू करना है, कोई भी मिले, नोइंग पीपल, अननोइंग प्रॉस्पेक्ट, अननोइंग कोई भी मिले, उनसे ये पूछना है, सर आपका बैंक में एफडी है क्या? बैंक में एफडी है क्या? आपको 98% लोगों के पास एफडी नहीं है। वो बोलेगा नहीं। नहीं बोला तो उनसे एक चीज पूछना है, सर एक एफडी अमाउंट मैं क्रिएट कर दूं, वो भी इंस्टॉलमेंट में, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को, अगर जो है लड़का 20 साल से 28 साल का है तो उसको एक अच्छा मतलब बीबी चाहिए। अच्छा बीबी मतलब दुनिया में उसका बीबी से बढ़कर कोई ब्यूटी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो सपना देखता है। जब शादी हो गया तो एक्सेप्ट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। और जो भी पढ़ाई होके कमाना शुरू करता है तो उसका भी एक सपना रहता है, बहुत बड़ा मतलब इनकम के साथ मेरा शुरुआत होना चाहिए। फिर वहां भी कॉम्प्रोमाइज करता है। उसके बाद जो है जब उसका वही मतलब मैरिज होके एक दो बच्चा होता है तो एक सपना रहता है उसका घर का, अपना मकान। और मकान भी ऐसा चाहिए पैलेस जैसा। जब उसका पॉकेट में सुराग देखता है, होल्स देखता है, तब वो अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक 1 RK 1 BHK 2 BHK में संतुष्ट होता है। ऐसे ही लोगों के पास एक बड़ा पूंजी का बैंक में पैसा हो, ऐसा सपना रहता है दिमाग में, लेकिन उसके पास उतना मतलब मोटा पैसा तो है ही नहीं। अगर उसको आप एक सपना दे दें, भाई साहब आपको ऐसा मैं एफडी बना के दूंगा, वो भी किस्त में, ईएमआई में। और ईएमआई बोला तो इंटरेस्ट होता है। यहाँ दूसरा डायलॉग बोलना है, हमारा ईएमआई विदाउट इंटरेस्ट रहेगा। उल्टा हम इंटरेस्ट भी अकुमुलेट करेंगे 4% गारंटीड के साथ। एक तो ईएमआई में तुमको एफडी क्रिएट करके दूंगा और वो भी विदाउट इंटरेस्ट तुम्हारा मोटा पैसा बनाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, हमारा पास जो है किस्त का जो है रकम शुरू होता है 2500 से, और आपका मर्जी के मुताबिक आप कितने पैसा भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए
15,000 का ईएमआई का समझाता हूँ, 15,000 का ईएमआई का समझाता हूँ। भाई साहब, आपका एक मोटा जो है 30 लाख का एफडी बनाना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना सर, महीने का 15,000 से शुरू करना। जिस दिन आपने 15,000 दे दिया, पहला 15,000, उसी दिन मैंने आपको 30 लाख का मालिक बना दूंगा, ओनर बना दूंगा, 30 लाख का ओनर बना दूंगा, वो भी बॉन्ड पेपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाम्प लगा के। और आपको मात्र जो है सिर्फ 16 साल देना है। जैसे ही 16 साल पूरा हो गया, उसके बाद हम 3 साल पैसा नहीं लेंगे आपसे, 3 साल पैसा नहीं लेंगे, 2 साल पैसा नहीं लेंगे। आप ये मत बोलो आपको रुकना पड़ेगा 2 साल, वो बोलेगा 16 साल तो पैसा भर रहा हूं और 2 साल आप रुकने के लिए बोल रहे हैं। आप बोलो आपसे सिर्फ 16 साल पैसा लेंगे और अगला 2 साल पैसा नहीं लेंगे। जैसा ही पूरा हो जाएगा 19वें साल से आपका पूरा जो है, मैं तो दिया था आपको 30 लाख का मालिक बनाया था, आपका लगभग जो है 49,20,000 से 50 लाख का मालिक बन गया। अभी आप 50 लाख का मालिक बन गया सर, 49,20,000 का। और सबसे मजेदार चीज क्या है, आपका जिंदगी भर 3 लाख रुपया, यानी महीने का 25,000 रुपया आपको लाइफ टाइम गारंटीड टैक्स फ्री मिलते रहेगा। और ये जो 49,20,000 है, ये भी आपके पास पूंजी रहेगा हमेशा। और एफडी में क्या होता है, एफडी कोलैप्स होता है, लेकिन मेरा एफडी कभी कोलैप्स नहीं होगा, वो पूरा स्टेबल बने रहेगा। वहां एफडी में आपको टीडीएस कटेगा सर, मेरा एफडी में टीडीएस नहीं कटेगा और आपको टैक्स फ्री मिलते रहेगा। वो भी 1 तारीख को आपको, साल में 1 तारीख को आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बैंक वाला उल्टा आपको मैसेज देगा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मैं समझाने के लिए 15,000 का ईएमआई का समझाया हूं सर। अगर आप चाहते हैं आपका एफडी का अकाउंट एलआईसी में 15,000 से शुरुआत करें, 25,000 से शुरुआत करें, 40,000 से शुरुआत करें, 60,000 से शुरुआत करें, या 1 लाख से शुरुआत करें। जब ह्यूमन साइकोलॉजी, अरे क्रिकेट में 6 बॉल क्यों फेंकता है, एक ही बॉल का क्यों ओवर नहीं रखा? क्योंकि वहां बैट्समैन को भी मौका मिल जाता है, यहाँ बॉलर को भी मौका मिल जाता है, और फील्डर को भी मौका मिल जाता है, और दर्शकों को भी मौका मिलता है। हेलो, दर्शकों को भी मौका मिलता है 6 लग गया तो ताली मारने का, चिल्लाने का। बॉलर को मौका मिलता है 6 बॉल में 1 बॉल अच्छा गिरा, विकेट गिर गया। बैट्समैन को भी, इवन विकेट कीपर को भी मौका मिलता है, बॉल टच होके किस करके गया तो वो कैच कर लेता है। तो यहाँ पर जो है उत्सव ही उत्सव है, ये उत्सव ही उत्सव है। तो ऐसा जो है, मैंने आपको समझाने के लिए तो सर 15,000 का समझाया। आपका जो है उत्सव का एफडी हम 15,000 से शुरू करें, 25,000 से शुरू करें, 40,000 से, ऐसा 6 बॉल फेंकाना। ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम मुंह से बोल देता है मेरा का एफडी शुरू कराओ। तो आपका कुछ नुकसान है क्या? लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिसको आप समझा रहे हैं, वो व्यक्ति का इनकम आपको दिखता है कम है, आपने एक अंडरस्टैंडिंग किया, वहां पर डायलॉग को रिवर्स करना है। पहले तो आप बड़े पैसे वालों को क्या बोला, साहब या सर बोला, यहाँ बोलना है, अपनापन करना है, भाई साहब, बहन जी। तो
आपको समझाने के लिए मैं 15,000 का समझाया हूँ। चाहे तो आपका जो है एफडी 15,000 से या 12,500 से या 10,000 से या 5,000 से, नहीं तो कम से कम 2,500 से तो शुरुआत कर लेना चाहिए। यहाँ ग्रांटेड करना है, ग्रांटेड। कम से कम 2,500 से तो शुरुआत कर लेना चाहिए। आज जो है मंथली 2,500 रुपया हर कोई दे सकता है, ये बिलीफ आपको होना चाहिए। 2,500 का दिया तो 5 लाख का पॉलिसी आपको बिक्री हो गया और 30,000 रुपया साल का प्रीमियम हो गया। अगर ऐसा 100 पॉलिसी बेचेंगे तो आपका एमडीआरटी हो गया, 30 लाख आ गया। एमडीआरटी तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत प्राइस कर रहा हूँ सर, आप लोगों ने जो है गैलेक्सी का मिशन लिया है। अगर उनको गैलेक्सी करना है तो कम से कम 130 पॉलिसी बेचना पड़ेगा। हमेशा सेंचुरी मारा ना, सेंचुरी जो है, सेंचुरी में रुको मत, आपका सेंचुरी बड़ा सेंचुरी होना चाहिए। 100 पॉलिसी बेचा तो 130, 140, और 150 पॉलिसी में पहुंच गया तांबो मत, 160-70 होना चाहिए। अगर 200 पॉलिसी बेचा तो 240-50 होना चाहिए। एडिशनल इनकम होने दो। जो है ये एफडी का कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट है पेपर एटीएम। डायलॉग शुरू करो। आपका एटीएम मशीन चाहिए क्या? एटीएम मशीन चाहिए क्या? तो वो बोलेगा क्या पागल है क्या, हमको एटीएम मशीन रखे हम क्या करेंगे? बोला साहब एटीएम मशीन पब्लिक यूज के लिए नहीं, आपका पर्सनल यूज के लिए अगर मैं एक एटीएम मशीन प्रोवाइड कर दूं, आपको कैसा लगेगा? बोला कैसा? आपको क्यूरियोसिटी आपने बढ़ा रहा है। एटीएम मशीन एक अट्रैक्टिव मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एनी टाइम मनी जाके कार्ड को इंसर्ट किया, आपका रिक्वायरमेंट का पैसे को आपने डिमांड में डाला, बटन दबा के आपका पासवर्ड को जो है चक चक किया और पट करके पैसा वापस आता है। तो एनी टाइम मनी का जो है एक बहुत पावरफुल जो है मशीन है ये। इस पावरफुल मशीन का एक कंसेप्ट है पेपर एटीएम मशीन। सर मैं एटीएम मशीन देना चाहता हूँ। हमारा एटीएम मशीन जो है कम से कम उसका कीमत 5 लाख है। कोई एक ही बार में नहीं देना। आप कम से कम जो है इस एटीएम मशीन लेने के लिए 5 years to 16 years आप चूज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में आप ले लो। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो है टर्म है सर 12 साल से 16 साल, क्योंकि 12 साल यूं निकल जाता है सर। आपको लगता है 16 साल लंबा है तो 12 साल का लीजिए, और उसमें हम आपको छूट देंगे 2 साल ना देने का। और 15 साल से अगर आपको 50,000 रुपया चाहिए, आपका 5 लाख का एटीएम लेना पड़ेगा। अगर आपको हर महीने में 50,000 रुपया चाहिए, हर महीने में 50,000 रुपया चाहिए, आपको 60 लाख का एटीएम लेना पड़ेगा। नहीं, आपको बड़ा दिखता है, आप 30 लाख का एटीएम ले लीजिए। तो ये एटीएम का कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है, हर किसी से भी आप बात कर सकते हैं, उत्सव समझाने की जरूरत नहीं, एटीएम का कंसेप्ट। और दूसरा जो है उमंग को आप एटीएम मशीन कंसेप्ट और चाइल्ड एजुकेशन का कंसेप्ट, कैरियर कंसेप्ट, उमंग और उत्सव को काम्बो करके दे सकते हैं। और सबसे इसमें वन ऑफ द बेस्ट काम्बो है, ग्रेजुएटी भी है, पेंशन भी है। ग्रेजुएटी भी है, पेंशन भी है। ग्रेजुएटी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जब नौकरी करके रिटायर्ड होते हैं, उसका पहले उनको उसमें ग्रेजुएटी मिलता है, उनका जो नौकरी है। एलआईसी एजेंट को भी ग्रेजुएटी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को एक माइंडसेट रहता है, मैं 16 साल 17 साल पैसा भर रहा हूँ, बाद में मेरा टुकड़ा टुकड़ा में पैसा आएगा जिंदगी भर, लेकिन मेरे को एक लमसम पैसा भी मिला तो कैसा रहेगा? तो इंस्टेंटली क्या हो गया, ये 16 इयर्स मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है।
तो आप 16 इयर्स का 10 लाख का उत्सव दीजिए। उसको उत्सव दे रहा हूं करके मत बताइए। आप ग्रेजुएटी दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। 16 इयर्स 19 इयर्स से जो है पेंशन मिलेगा उत्सव में। और 933 19 साल का टर्म दीजिए, 16 साल का प्रीमियम पे 10 लाख। 19वें साल में 19 लाख ग्रेजुएटी और 19वें साल से 1 लाख रुपया पेंशन। और जिसको 2 लाख पेंशन चाहिए, 38 लाख रुपया ग्रेजुएटी चाहिए, 20-20 लाख का दीजिए। अगर आपको लगता है मैं 40 लाख का पॉलिसी दूंगा, मेडिकल में फंस जाऊंगा, फंसो मत। 20 लाख जो है वाइफ के नाम पर उत्सव दीजिए और 20 लाख रुपया हस्बैंड के नाम पर लक्ष्य दीजिए, क्योंकि मजबूत इंश्योरेंस हो जाएगा हस्बैंड का। और वाइफ का जो है यंग एज होने के कारण वो सर्वाइव ज्यादा करती है, उसको लगातार लॉन्ग टर्म पेंशन मिलेगा। दूसरा कारण मैं उत्सव जो है वाइफ के नाम पर क्यों देना के लिए बोल रहा हूँ, विडोयर से विडोस ज्यादा है पूरा पृथ्वी में। मतलब आदमी से औरत लोग ज्यादा दिन जीते हैं, इसलिए औरत के नाम पर उत्सव दीजिए और इंश्योरेंस जिसका जरूरी है उसको लक्ष्य दीजिए। तो ये है ऐसा 36 कंसेप्ट है हमारा। ये 36 कंसेप्ट का पूरा जो है 5 घंटे का सेशन होता है। ये अभी लाभ का आ रहा है, लाभ को मैं आसानी से समझाता हूँ। ये पूरा जो है ये हमने ये किया हुआ है, ये 500 नोट का पूरा पुणे बॉम्बे पूरा महाराष्ट्र में ये बहुत फेमिलियर है। लोग इसी एक जो है ब्राउचर से लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी करते हैं। ये हमने क्रिएट किया हुआ कंसेप्ट है। बॉम्बे का जो है मिलिन वलवलकर का एक वीडियो है लाभ अकाउंट का, उसमें उन्होंने हमारा नाम मतलब रिगार्ड किया है। पुणे का ऐसा ऐसा एक अभी करता है, ये लाभ अकाउंट का जो है कंसेप्ट क्रिएट किया है करके। तो ये कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले ये नोट है, इस नोट को जो है आप कस्टमर के सामने रख दीजिए और आपके सामने एक नोट रखिए। उनसे डायलॉग ये बोलना है, सर आपका बैंक में अकाउंट है क्या, बैंक में अकाउंट है क्या। सामने वाला बोलता है हाँ अकाउंट है, क्योंकि आज जो है हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो है 100% लोगों के पास अकाउंट है। और जब आप पूछ रहे हैं अकाउंट है क्या, उससे एक पॉजिटिव आंसर आपको मिल रहा है हाँ यस। तो नेक्स्ट स्टेप बोलना है, सर आपका एलआईसी में भी एक लाभ अकाउंट बोल के अकाउंट है, उसके बारे में किसी ने आपको बताया क्या। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में जितने भी एजेंट है जीवन लाभ करके बोल रहा है। यहाँ पहला वह आदमी है, पहला जो है इंश्योरेंस एजेंट है। आप लाभ अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, जहां लाभ बोल के एक शब्द आता है वहां एक आकर्षक जो है क्यूरियोसिटी बढ़ता है। बढ़ते ही आपको एनकैश कैसा करना है, भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना है इस लाभ अकाउंट में। मात्र 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 1 लाख रुपया आपको निवेश करना है अपना लाभ अकाउंट में। 16 साल आपका 16 लाख रुपया जमा हो गया। साथ ही साथ एलआईसी भी आपका लाभ अकाउंट में 1 लाख रुपया निवेश करेगा 16 साल। एलआईसी की तरफ से भी आपका लाभ अकाउंट में 16 लाख रुपया जमा हो गया। आपका निवेश किया हुआ 16 लाख, एलआईसी के द्वारा निवेश किया हुआ 16 लाख, दोनों मिलके 32 लाख हो गया। सर अभी तो मैजिक शुरू होने वाला है, अभी तो आपको 1 का 1 दिया, अभी 0 को 2 देने वाले हैं। अगले 9 साल आपको अपना 1 रुपया भी निवेश करने की जरूरत नहीं। आपका तरफ का 1 लाख रुपया, एलआईसी का तरफ का 1 लाख रुपया
दोनों मिला के 2 लाख रुपया आपका लाभ अकाउंट में LIC लगातार 9 साल निवेश करके 18 लाख रुपया जमा करेगा। यहां देखिए, आपका सिर्फ निवेश किया हुआ 16 लाख, LIC के द्वारा आपका लाभ अकाउंट में निवेश किया हुआ 16 लाख, और सिर्फ LIC के द्वारा आपका लाभ अकाउंट में निवेश किया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ, ये तीनों मिला के 50 लाख रुपया आपको टैक्स फ्री मिलेगा। तो मैं चाहता हूं सर, समझाने के लिए तो मैं 1 लाख रुपया का लाभ अकाउंट का समझाया हूं। आपका लाभ अकाउंट हम 1 लाख से शुरुआत करें, 3 लाख से शुरुआत करें, 7 लाख से शुरुआत करें, 10 लाख से शुरुआत करें, या कम से कम 2 लाख से तो शुरुआत कर ही देते हैं सर। शुरू करवा देते हैं बोलते ही वो हाँ कर दिया, आपका 40 लाख का लाभ और 2 लाख रुपया जो है प्रीमियम आया, आपको 70,000 कमीशन आया, 70,000 कमीशन आया। कितना पावरफुल कंसेप्ट है। और ये जो है हम सबका सपोर्ट के लिए हमने बना के रखा है। इसका जो लीफलेट हमने मतलब इसमें भी डाला है, हमने सार का भी भेजा है शायद मैंने, इसका कैसा कैसा डायलॉग बोलना करके, जैसा मैंने बताया है। ये सिर्फ 2 रुपया का एक है, और 500 जो है लीफ 500 का, ये 1000 रुपया है। अगर ये 500 क्यों मैं बता रहा हूं, अगर आपने 500 लोगों को मिला, अगर 50 लोगों ने पॉलिसी लिया, आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। ये जो है लाभ अकाउंट का ये कंसेप्ट है जो मैंने समझाया। देखिए, ये ऐसा जो है ब्राउचर से भी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल LIC का कलर है, देखिए ब्लू 100। 1 लाख निवेश किया, 16 लाख हो गया। LIC ने 1 लाख निवेश किया हुआ, 16 लाख हो गया। टोटल 32 लाख हो गया। सेल्फ इंडिविजुअल ने कोई पैसा जमा नहीं किया, 9 साल LIC ने 2 लाख जमा किया, 18 लाख, पूरा मिला के जो है 50 लाख टैक्स फ्री मिल रहा है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। LIC एजेंट सिर्फ निकल के रोज 5 आदमी से मिलेगा, उसका तो कोई MDRT गैलेक्सी क्लब मेंबर बनने से कोई, जो जन्म दिया ना भगवान, वो चाहे तो भी रोक नहीं सकता है। ये मेरे से गारंटी लिख के ले लो। लाभ का ये एक ब्राउचर है, ये और भी जबरदस्त है। हमारा एक अभिकर्ता का फैमिली है, उस फैमिली में 4 एजेंसी है, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़के। 3-3 महीने में MDRT करते हैं, एक ही परिवार में 4 MDRT करते हैं, सिर्फ एक ही ब्रोचर से। लेकिन चारों चारों रोज घर से निकलते हैं 10 बजे, नाश्ता करके बांध के, शाम को 7:30 बजे एक होटल में मिलते हैं, वही डिनर करते हैं, और 1 घंटा डिनर करते करते उनका बातचीत होता है, कहाँ कहाँ किस किस से मिला, कितना ये हो गया। एक परिवार में 4 MDRT बनता है, कितना इनकम हो रहा देखिए। ये क्या है, एक मैजिक फिगर है, आप ऊपर देख रहे हैं 1 करोड़। ये जो 1 करोड़ का जो मैजिक फिगर है ना, ये बहुत आदमी को है ना, जैसा बोलते हैं ना, आम को नाम सुनते हैं तो जीप में पानी निकलता है, ऐसा ही है। 1 करोड़ जो है आदमी को हिला देता है, शेक कर देता है। उनसे बोलने का है, इसका भी मैं डायलॉग बताता हूं। सर, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूं,
मैं 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूँ। सामने वाला पूछेगा आप कैसे देंगे? सर आप कैसे देंगे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको चाहिए। ठीक है, मैंने दिया, आपने लिया, लेकिन मैं जब 1 करोड़ दे रहा हूं, आप लेने वाले हैं, वो भी टैक्स फ्री, उस समय आपका उम्र क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताइए, आपको 1 करोड़ तो लेना है, तो कितने साल के बाद चाहिए? अगर वो व्यक्ति बोलता है 25 साल के बाद चाहिए, सबसे पहले तो आप 1 करोड़ देने वाला बन गया, देने वाले को लेने वाला बनता है वो। और आपने पूछा कितने साल के बाद चाहिए, वो बोलता है 25 साल के बाद चाहिए। आप और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अगर 25 साल के बाद चाहिए आपको, आपका स्टेटमेंट के मुताबिक, 25 साल के बाद आपका उम्र क्या होगा? अगर वो बोलता है मेरा 60 साल हो गया, 60 साल हो जाएगा, तो सीधा इधर चार्ट है, इसका मतलब उसका परसेंटेज 35 है, 60 - 25, तो 25 का जो है 15,123। सर क्या डिसीजन लिया, अप्रिशिएट करो। बराबर आपने अपना रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए 1 करोड़ का जो है बंदोबस्त करने के लिए सोच लिया। आपको कुछ भी नहीं करना सर। महीने का 15,123 रुपया देना है, 15,123, वो भी सिर्फ 16 साल देना है। बाकी 9 साल आपका 15,123 रुपया LIC भरेगा। और 25th ईयर खत्म होते ही आपका 1 करोड़ रुपया पूरा VIP ब्रीफ केस में 500 रुपीज का नोट का बंडल करके आपका ऐसे के ऐसा बिना टैक्स का देंगे सर। सिंपल मेथड है ये कन्वर्सेशन का। अगर कोई बोलता है मेरे को 21 साल का चाहिए, तो इसी डायलॉग से आपने इसी कन्वर्सेशन के स्टेप से आपका उसका उम्र पता करके उसको ये करना है। अगर कोई 16 साल बोलता है गैप, 16 साल का प्रीमियम बताना है। ये इंटेंशन क्या है? आप 16 साल में ले लो, 21 साल में ले लो, 25 साल में ले लो, हमारा कंसेप्ट है तुमको करोड़पति बनाना है। ये 1 करोड़ का ये भी बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मैं सार को ऑलरेडी PPT दे दिया हूँ, उससे जो है आप स्क्रीनशॉट करके प्रिंट करके आप अपना व्यवसाय को बढ़ाइए, यही हमारा इंटेंशन है। और एक कंसेप्ट है लक्ष्य को बेचने के लिए। आप किसी से भी मिलते हैं 30 साल उम्र से 40 साल के बीच में, उनसे सिर्फ इतना पूछिए, सर मुझे बताइए आप अपना रिटायरमेंट टाइप, गौर से सुन लीजिए, आप रिटायरमेंट कब होंगे नहीं पूछना, आप अपने रिटायरमेंट टाइप का जिंदगी कब से, कौन सी उम्र से शुरुआत करेंगे? अगर वो व्यक्ति बोलता है मैं 60 साल या 65 साल उम्र से शुरुआत करूंगा, वेरी गुड सर। लेकिन उस रिटायरमेंट टाइप का जिंदगी शुरुआत करने के पहले आप मुझे ये बताइए उसके लिए कितने साल बाकी है आपके पास? वो बोलता है 30 इयर्स बाकी है। पहले बोला उसने 60 साल, अभी बता रहा है 30 साल बाकी है, इसका मतलब 30 साल उम्र हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, सर ये 30 साल उम्र से लेके 60 साल उम्र तक आपका प्रोडक्टिविटी ईयर है, आप कमाने वाले हैं। इस कमाई के बीच में आपका लाइफस्टाइल जो है आपका घरगुती चलेगा ही, लेकिन इसके बीच में आपके लिए और आपका परिवार के लिए, आपके लिए आपका परिवार के लिए ऐसा कहां कहां पर मोटे पूंजी लगने वाला है, मोटा पैसा, बिग मनी कहां कहां मतलब लगने वाला है। मैं ये जो है बात आपसे जानना चाहता हूं सर। आप अगर बताएंगे तो मैं उसके ऊपर कुछ जो है टिप्पणी या सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सब पूरा सबको मालूम है,
कहाँ कहाँ मोटा बना है, वो खुद ही जो है तोते के माफिक बोलेगा। अरे बच्चों का पढ़ाई, बच्ची का शादी, और सब, अरे कुछ हुआ तो मैं अपना रिटायरमेंट का भी कर लूंगा बंदोबस्त। ये 3-4 चीज बोलते हैं लोग। बहुत कुछ इंटेलिजेंट रहेगा, वो बोलता है बच्चों का कैरियर भी बनाना है, वो बोलता है बिजनेसमैन लोग। ऐसा जो है अमूमन 3 से 4 जो है मोटा पैसे का रिक्वायरमेंट लगता है। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया सोच है। इसमें कौन सी जरूरत को आप ज्यादा महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे? और इंसान का साइकोलॉजी क्या बोलता है मालूम है? बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई के ऊपर सबको चाहत है। हर कोई अपने से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ा के देखना चाहता है। वो जो डॉक्टर नहीं बना ना, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना के देखना चाहता है। जो वकील नहीं बना ना, वो अपने बच्चे को वकील बना के देखना चाहता है। जो आदमी अकाउंटेंट है ना, वो अपने बच्चे को सीए बना के देखना चाहता है। जो नॉर्मल ड्राफ्ट्समैन है ना, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बना के देखना चाहता है। इसको एनकरेज करो आप। सर, आप अपना बच्चे का एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, प्रियोरिटी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसा कौन सा आप जो है हायर एजुकेशन अपना बच्चे को देना चाहते हैं? उदाहरण के लिए वो बोलता है इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ। सर, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा। आपका बच्चे का अभी उम्र क्या है और नाम क्या है? और वो बोलता है मेरा बच्चे का तो अभी 3 साल उम्र है, उसका उम्र श्रीकांत है। अभी तक मैं आपका बच्चे बोल रहा था, नाम भी नहीं मालूम था, पैसे का जरूरत को बताया उसने, मतलब बच्चे का नाम भी बोल दिया। इधर धीरे धीरे अपना सेल क्लोज हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चे के नाम और उम्र बोल दिया, आपका 70% सेल क्लोज हो गया। अभी बड़ा प्रीमियम कैसा लेना है? सर, अपना जो श्रीकांत है, अभी तक उसका बच्चा था, अभी अपना हो गया। अपना जो है श्रीकांत को आज 3 साल हो रहा है, और उसका इंजीनियरिंग कराना है बड़ा होने के बाद। मान लेते हैं आज 2024 19 जनवरी को वो 18 साल का हो गया और उसका 12th कंप्लीट हो गया। अगला 4 साल उसको इंजीनियरिंग पढ़ाना है। तो आज 2024 जनवरी 19 तारीख को उसका 4 साल का इंजीनियरिंग शुरुआत करके कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगेगा? आज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एजुकेशन कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग? उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूछा है। हमेशा कस्टमर पूछता था आज तक, अभी तुम पूछना शुरू कर दिया। हमेशा कस्टमर, क्योंकि हम प्रोडक्ट को बता रहे थे, इसलिए 1000 क्वेश्चन पूछता है कस्टमर। अभी हम नीड के ऊपर बात कर रहे, तो अभी कस्टमर को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेचारा वो जवाब दे रहा है। बोलता है, उदाहरण के लिए वो बोलता है 10 लाख तो लगेगा ही कम से कम। सर, 10 लाख तो लगेगा आपने बोल दिया, वो तो प्रेजेंट वैल्यू है। आज से 15 साल के बाद कस्टमर के सामने अपना इंटेलिजेंसी मत दिखाओ। सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा? कितने लोगों को इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आता है? तो अपने को येड़ा बन के पेड़ा खाना है। येड़ा मतलब बेवकूफ बन के मिठाई खाने का, रसगुल्ला खाने का। सर, अभी 10 लाख लगेगा, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है। मैं चाहता हूँ आज से 15 साल के बाद
1 पट अधिक चाहिए, 2 पट अधिक चाहिए, या 3 पट चाहिए, या 4 पट चाहिए, या 5 पट चाहिए अधिक। अब स्टेप्स में पूछो, 1 गुना ज्यादा चाहिए, 2 गुना ज्यादा चाहिए, 3 गुना ज्यादा चाहिए, 4 गुना चाहिए, या 5 गुना चाहिए। अगर वो बोलता है 4 गुना तो ज्यादा लगेगा ही 15 साल के बाद, क्योंकि आज से 15 साल पहले 2 लाख में इंजीनियरिंग होता था, या हम भी 4 पट बढ़ गया आज। अभी 15 साल के बाद तो और 4 पट लगेगा ही है। इसका मतलब सर 50 लाख लगेगा। अगर इस 50 लाख को आज शाम को 7 बजे या 7:30 बजे हम दोनों बैठ के अपना श्रीकांत का एजुकेशन का फाइनेंशियल प्लानिंग गारंटी के साथ बना ले तो कैसा रहेगा? गारंटी के साथ बोलता है अच्छा रहेगा। तो शाम को 7 बजे या 7:30 बजे ओके सर, बैठ जाने का। और जब प्रीमियम पूछता है, आपको प्रीमियम नहीं बताने का। प्रीमियम पूछता है, प्रीमियम नहीं बताने का। प्लान पूछता है, नहीं बताने का। प्लान आप अपना मर्जी से दो। अगर मिडिल और अपर मिडिल है, सीधा लक्ष्य दो। थोड़ा अच्छा खासा पैसा वाला है, सीधा लाभ दो या जीवन आनंद दो। प्लान को डिसीजन आप लो। और लगभग सभी पॉलिसी का प्रीमियम लगभग सेम होता है। यहाँ पर आपको और एक जो है ट्रिक्स बताता हूं। अगर प्रीमियम भी पूछता है, 25 साल का गैप रहता है तो 2% लगेगा विथ टर्म राइडर। सपोज किसी को 50 लाख रुपया का जरूरत पड़ेगा, उसका 2% जो है प्रीमियम लगेगा 50 लाख का। तो उसको बोलने का सब सिर्फ 2% पैसा चाहिए 50 लाख का। वो पूछेगा 50 लाख का 2% कितना है? 1 लाख रुपया। हेलो, 1 लाख रुपया। वो भी 1 लाख रुपया कितने दिन देना है? 22 साल देना है। 25वें साल 50 लाख मिलेगा। और पॉलिसी कितने का देना है? 20 लाख का। ऐसा ही जो है, जैसा जैसा गैप कम होता है, अगर 25 ईयर्स का 2% है तो 24 ईयर्स का 2.25%, 23 ईयर्स का 2.5, ऐसा 0.25 रिड्यूस होता है। तो 15 साल का तकरीबन 4% से 4.5% के बीच में। तो उसको बोलना है सर 15 साल में कुछ नहीं करना, 4% आप दो, आपका 50 लाख हो जाएगा। 3%, मतलब उसका अभ्यास कर लो आप। ये एक मतलब तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख 3 लाख प्रीमियम बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है बहुत पैसा मांग रहा है। तो परसेंटेज क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपका 2% से लेके 1.75% से लेके 4% के बीच में बताओगे तो उसको कम पैसा दिखता है। ओके। और ये भी बोल सकते हैं, अगर आपका लड़का अगर इंजीनियर बन के उसका कन्वर्गेशन हो रहा है, लड़का बहुत बढ़िया पढ़ के मतलब कॉलेज में आया है, फर्स्ट जो है कन्वर्गेशन में पूरा जो है यूनिवर्सिटी में कन्वर्गेशन हो रहा है, और उसको जो है स्टेज में बुला रहे हैं उसका ग्रेजुएशन देने के लिए, और वो कॉलेज में नंबर 1 2 3 में आ रहा है, उस समय आज से पेरेंट आपको बुला रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा सर? अगर आज मेरे बात माँ बाप का जो है अपना श्रीकांत का एजुकेशन फाइनेंसिंग नहीं करते, वहां बड़ा होने के तो वो जिद करेगा मेरे को इंजीनियरिंग करना है, तो आप जो है हमें एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। जो अभी आप जो है 50% पैसा सेव करके जो अपने बच्चे का इंजीनियरिंग करा रहे हैं, वहां पर आप डबल पैसा, वो भी विथ ब्याज दे के आपको अपना एजुकेशन करना पड़ेगा। लायबिलिटी आप खुद क्रिएट करेंगे।
और उस समय आपका उम्र भी क्या होगा। और सर आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, आज पूरा वर्ल्ड में और खास करके इंडिया में जो 45 साल से 55 साल उम्र के बीच में लोगों को 3 बीमारियां होता है, सिर्फ इसी वजह से, इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर 1 बीपी, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 हार्ट अटैक। अगर तीनों में नहीं फंसना है, अभी वक्त है, समय है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करो। आप पैसे वाला भी बन जाओगे, बच्चों का भी अच्छा एजुकेशन हो जाओगे, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। लाभ लक्ष्य कोई भी पॉलिसी है, हेलो हेलो हेलो, ए गीता, और निमिष आगले। हेलो, यार मैं तेरी माटेंगे इंटरनेट इंटरनेट पेट्स इंटरनेट पेट्स वेना बन रही है। एक मिनट इधर कनेक्ट बन रही है। हेलो, ಹಿಂಗ ಅದೇ ನೆನಪಾಗ इधर वीक है इंटरनेट वीक है लैपटॉप இன்டர்நெட் போயிருக்கு போயிட்டு வந்துருக்கு हैंग ஆயிடுச்சு வரல அதுல அவளை கனெக்ட் கூட பண்ண முடியாது, கோர்ஸ்லாம் கூட பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி கோர்ஸ் இருக்காலவா ஆல்ரெடி கோர்ஸ் இது இருக்காலே வந்துட்டு பாரு இருக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு லேப்டாப்ல கீதா லேப்டாப் கீதா உன் லேப்டாப் வேணும் கீதா கீதா உன் லேப்டாப் உங்க அப்பா எங்க வர, எங்க அங்கேயே வர, இதுல இல்ல இல்ல இதுலயே நீங்க கனெக்ட் பண்ணி இதை வந்துடுது, இல்ல நீங்க இதுலயே மொபைல்லே பண்ணி கொடுங்க, மொபைல்லே பண்ணி சரியாவே பண்ணல. 9 to 10 phone calls. If you are making 9 to 10 phone calls, you are likely to get 5 appointments. If you are getting 5 appointments, it means you are getting a sale one day each. Now, this is very important. Sir, are you with me? Raman sir? Please take over. Please take over. चार्जर बोलो बोलो 2 मिनट बोलो, मैं वो लैपटॉप हैंग हो गया। हाँ सर आप बोलो। Ashar sir, आप mute है। Ashar sir, आप mute है। Yes sir. Can you hear me? Yes sir. Yes. Thank you. Thank you sir. 9 to 10 calls in a day means that you have to make 9 to 10 calls in a day. You make about 5 appointments. If you're getting 5 appointments. अच्छा ओके आशा जी Please continue.